सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो टॉपिक मैंने चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 से लिए एंड द टॉपिक इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले जो वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को ही फर्दर एक्सटेंड करेंगे। तो आज का जो आर्टिकल है हमारे पास वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई एम अगेन रिपीटिंग, potential energy of the dipole in a uniform electric field. Now what is potential energy? It is the energy possessed by the dipole by the virtue of its position in the electric field. What I am saying, listen carefully. It is the energy possessed by the dipole by the virtue of its position in the electric field. So article is potential energy of the dipole, potential energy of the dipole placed in a uniform electric field, uniform electric field. Potential energy of the dipole placed in a uniform electric field. What is potential energy of the dipole? It is the energy possessed by the dipole by the virtue of its position in the electric field. इस आर्टिकल में हमने क्या करना है, हम एक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। जैसा कि मैंने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया था कि जब भी आप एक डाइपोल को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क लगता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और वो टॉर्क उस डाइपोल को रोटेट करता है, जिसका रिजल्ट भी हमने फाइंड आउट किया था। टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, where P is the dipole moment and E is the electric field in which it is placed and theta is the angle which is makes by the dipole moment P along with the electric field। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द एनर्जी, it is the energy possessed by the dipole, by the virtue of its particular position in the electric field. Now what is potential energy? I am again repeating, it is the energy possessed by the dipole by the virtue of its particular position in the electric field. So this is the electric field E. This is positive and this is negative. As you know, the electric field is always moving from positive to negative. So this is the electric field. This is the electric field. And we have to place the dipole having the dipole moment P first in this manner. This is the dipole A and B. This is minus Q, this is plus Q,
and the dipole moment is in this direction along A to B. So let us consider a dipole. Let us consider a dipole AB having dipole moment P, having dipole moment P is along A to B. मैंने यहां पर एक डाइपोल ले लिया जिसकी डाइपोल मोमेंट क्या है हमारे पास P और जो A से B की तरफ है। आप सभी को पता है कि जो डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग माइनस q एट पॉइंट A एंड प्लस q एट पॉइंट B। तो let us consider a dipole AB having dipole moment P is along A to B, and this dipole is placed in a uniform electric field in such a way that the dipole moment P of the electric dipole is along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड E। मैंने क्या किया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड वी हैव टू प्लेस द डाइपोल AB। हमने क्या किया, एक डाइपोल AB जिसकी डाइपोल मोमेंट A से B है उसको इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने रख दिया। तो एंगल कितना है डाइपोल मोमेंट P और E में 0 डिग्री। तो अब ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए कि इस Q पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज Q इंटू E, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा Q इंटू E। और ये दोनों फोर्सेस जो इस डाइपोल के ऊपर लग रहे हैं दे आर इक्वल एंड अपोजिट। सो due to the electric field the force acting at point B which consists of a charge Q is Q into E acting along the direction of electric field। मैंने मान लिया कि इस E की वजह से जो इस B पॉइंट के ऊपर फोर्स लगेगा वो Q into E इस डायरेक्शन में लगेगा। So due to the electric field, the force acting at point B, which consists of a charge Q, is Q into E, acting along the direction of electric field। इसी तरह जो इस A पॉइंट के ऊपर फोर्स लगेगा due to this electric field वो इस डायरेक्शन में लगेगा। Similarly, या फिर the force acting at point A which consists of charge Q the force acting at point A which consists of a charge Q due to electric field E is
Q into E, but it is acting opposite to the direction of electric field. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्या कहा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस बी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू ई इस डायरेक्शन में लगेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो ए पॉइंट पे फोर्स लगेगा दैट इज Q इंटू ई एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर? जीरो। If F is 0, then torque is 0. It means the dipole is not rotating. So, the net force acting on the dipole is 0. तो जो net force लगेगा acting on the dipole is 0. तो अगर मैं अब क्या कर रहा हूं, इस डाइपोल को एक सर्टेन एंगल, अभी मैंने क्या दिखाया कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0। अगर तो डाइपोल को हमने कैसे रखा है, इस तरीके से रखा है कि उसकी डाइपोल मूवमेंट अलाइन कर रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मैं क्या करूंगा, अब जब फोर्स 0 हो गया तो इस पे टॉर्क भी कितना लगेगा? 0 लगेगा, जिसकी वजह से डाइपोल रोटेट नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूं, इस डाइपोल को रोटेट करता हूं एक सर्टेन एंगल से, थीटा से। नाउ द डाइपोल इज रोटेटिंग थ्रू ए सर्टेन एंगल से थीटा। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। नाउ द डाइपोल इज रोटेटिंग थ्रू ए सर्टेन एंगल से थीटा। मैं इस डाइपोल को एक सर्टेन एंगल थीटा से रोटेट कर रहा हूं थ्रू ए सर्टेन एंगल से थीटा। मैंने क्या किया, इस डाइपोल को एक सर्टेन एंगल थीटा से रोटेट कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, तो अब इस प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज क्यू इंटू ई, और जो इस पे फोर्स लगेगा दैट इज क्यू इंटू ई, वो इस डायरेक्शन में होगा। सो दीज टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डाइपोल एट पॉइंट ए एंड बी फॉर्म ए कपल, एक कपल का फॉर्मेशन करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये डाइपोल रोटेट करने लग जाएगा एक क्लॉकवाइज सेंस में, और इसके ऊपर इसका मतलब एक टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से एक रोटेशनल इफेक्ट आएगा, और वो टॉर्क हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, वो कितना है? Pe sin थीटा। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप इस डाइपोल को इस पोजीशन में रखोगे, नाउ द डाइपोल इज रोटेटिंग थ्रू सम एंगल थीटा, देन द टू equal and then the two forces, equal and opposite forces acting at point A and B of the dipole formed a couple due to which a torque is acting on the dipole which produce the rotational effect
inside the dipole. मैंने आपको क्या दिखाया कि जब आप एक डाइपोल को, पहले हमने ऐसे रखा था, इफ यू हैव टू रोटेट द डाइपोल थ्रू ए सर्टेन एंगल से थीटा, अगर मैं इस डाइपोल को एक सम एंगल थीटा से रोटेट करूंगा तो आप देख रहे हो कि इस क्यू पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगा है और माइनस क्यू पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगा है। तो ये दोनों फोर्स जो है वो एक कपल का फॉर्मेशन करेंगे और इस डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क लगाएंगे जिससे ये डाइपोल जो है रोटेट होना शुरू हो जाएगा। दिस टॉर्क विल प्रोड्यूस द रोटेशनल इफेक्ट इनसाइड द डाइपोल। अब जब डाइपोल रोटेट होगा तो कितना टॉर्क इसके ऊपर लगेगा ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज Pe sin theta। Now the torque acting on the dipole is Pe sin theta। तो टॉर्क कितना लगेगा इसके ऊपर? Pe sin theta। ये हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव भी किया था। Where P is the electric dipole moment, of the dipole, and E is the electric field, and theta is the angle between the dipole moment and the electric field E। जिसमें P क्या है आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, E क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा क्या है आपके पास एंगल बिटवीन दिस डाइपोल मोमेंट P एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां हमने डिस्कस किया था ये जो टॉर्क, जब मैंने इस डाइपोल को रोटेट किया एक सर्टेन एंगल थीटा से, तो मैंने अभी आपको दिखाया कि एक टॉर्क इसके ऊपर लगेगा दैट इज Pe sin theta। नाउ दिस टॉर्क will try to rotate the dipole further in clockwise sense to bring it back to its original position। ये जो टॉर्क इसके ऊपर लगेगा, ये टॉर्क जो इसके इस डाइपोल के ऊपर लगेगा, ये इस डाइपोल को फर्दर रोटेट करेगा एक क्लॉकवाइज सेंस में और वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। दोबारा सुनने इस पॉइंट को, लिसन केयरफुली। मैंने क्या बताया आपको, अगर ये डाइपोल यहां से हम रोटेट करके एक सर्टेन एंगल थीटा तक यहां पे ले आते हैं तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, उस टॉर्क की वैल्यू है Pe sin theta। अब इस टॉर्क का काम क्या होगा, इस डाइपोल को वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना। लेकिन अगर हम डाइपोल के ऊपर इस डाइपोल को मैं फर्दर घुमाऊं थ्रू ए सर्टेन एंगल से d थीटा, तो ये टॉर्क कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि टॉर्क चाहता है कि ये डाइपोल वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए और मुझे इस डाइपोल को इधर रोटेट करना है इस तरफ थ्रू ए सर्टेन एंगल से d थीटा। तो इसका मतलब मुझे एक वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द टॉर्क। सो दिस टॉर्क tau tries to bring back the dipole to its original position। ये डाइपोल क्या करेगा, वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैं इस डाइपोल को फर्दर रोटेट करता हूं सर्टेन एंगल d थीटा, तो इट मींस सम अमाउंट ऑफ वर्क वी हैव टू बी डन अगेंस्ट द टॉर्क। बट
if we try to rotate the dipole through a angle say d theta further, अगर मैं इस डाइपोल को if we try to rotate the dipole through a angle say d theta further, तो अब क्या होगा, इसका मतलब हमें एक वर्क करना पड़ेगा. It means we have to do some work against the restoring torque. इसका मतलब हमें एक वर्क करना पड़ेगा किसके, इस रेस्टोरिंग टॉर्क के अगेंस्ट में. तो मान लेते हैं कि लेट dw is the small amount of work done to rotate the dipole through a certain angle से d theta. हम मान लेते हैं let dw be the amount of work done to rotate the dipole through a certain angle say d theta. तो dw कितना होगा वर्क डन, दैट इज टाउ इनटू d थीटा. सो मैंने आपको बताया कि ये टॉर्क जो है ये इस डाइपोल को इधर लाना चाहता है ओरिजिनल पोजीशन में, लेकिन अगर मैं इस डाइपोल को फर्दर रोटेट करूंगा थीटा एंड d थीटा एंगल से, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द रेस्टोरिंग टॉर्क. तो मैंने मान लिया कि वो वर्क कितना था dw. लेट dw बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन to rotate the dipole through a certain angle say d theta against the torque. तो dw की वैल्यू आ गई tau into d theta. This is equation number 2. Put the value of tau in equation number 2. अब क्या करेंगे, इस tau की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर हम 2 के अंदर पुट करेंगे. तो dw कितना आएगा हमारे पास, p e sin theta into d theta. This is the small amount of work done to rotate the dipole through an angle d theta, जो हमने इस रेस्टोरिंग टॉर्क के अगेंस्ट में वर्क किया. Now the total amount of work done to rotate the dipole from angle theta 1 to theta 2 is given by, तो इंटीग्रेशन ले लेंगे, dw is equal to इंटीग्रेशन ऑफ p e sin theta into d theta. अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक एंगल से रोटेट कर रहा हूं, टोटल वर्क निकाल रहा हूं. तो मान लेते हैं कि w का टोटल वर्क है टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी थीटा 1 से थीटा 2. तो w कितना है हमारे पास, p e इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2. तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो W आया आपके पास पी ई थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा. तो W आ गया हमारे पास पी ई साइन थीटा का क्या बनेगा आपके पास माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2. ऐसा क्यों होगा, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा.
W आ जाएगा P डॉट E माइनस हम बाहर ले लेंगे, एक बार अपर लिमिट लगाएंगे cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1. So this is the work done if you want to rotate the dipole against the restoring torque from the angle theta 1 to theta 2. And this is the work done is stored inside the dipole in the form of potential energy. This work done is stored inside the dipole in the form of potential energy. Potential energy. So the equation number 3 will be reduced to potential energy is equal to minus P dot E PE cos of theta 2 minus cos of theta 1. So this is the potential energy stored inside the dipole when it is to be rotating through a certain angle from theta 1 to theta 2. एक केस बनाएंगे, केस नंबर 1. क्या केस बनाएंगे? आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले मैंने डाइपोल को इस तरीके से रखा था कि इसकी डाइपोल मूवमेंट P अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो. अब अगर मैं इसे रोटेट करता हूं एक सर्टेन एंगल मान लेते हैं थीटा तक, तो थीटा 1 कितना हो जाएगा 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज थीटा. इनिशियली एज यू नो, initially the dipole is placed in a electric field in such a way that its dipole moment P, its dipole moment P aligns along the, its dipole moment P aligns along the direction of electric field. मैंने मान लिया कि इनिशियली हमने आपको बताया था कि शुरू में मैंने डाइपोल को कैसे रखा था, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सो द एंगल बिटवीन the dipole moment P and the electric field E is 0 डिग्री. तो थीटा 1 आपका कितना हो गया 0 डिग्री. नाउ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू एंगल से थीटा. नाउ द डाइपोल is rotating through a angle say theta. It means इसका क्या मतलब हुआ कि थीटा 2 आपको कितना गिवन है थीटा. Then the equation number 3 will be reduced to, अब थीटा 1 को क्या रखेंगे 0 और थीटा 2 को थीटा. तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस Pe cos of theta 2. What is theta 2? That is theta minus what is theta 1? That is 0 डिग्री. तो
P dot E is equal to minus P E cos of theta, because cos of 0 डिग्री इज 1। तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो आ गई। नाउ व्हाट इज ए बी cos थीटा? एज यू नो ए डॉट बी, तो माइनस P dot E। दिस इज बिकॉज A B cos theta is equal to A dot B. So this is the potential energy. This is the potential energy stored inside the dipole when placed in an electric field, and it is a potential energy is a scalar quantity. It is a scalar quantity. तो मैंने आपको बताया मेरे प्रिय दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, कि जब भी हम एक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी? दैट इज माइनस पी ई कॉस थीटा, वेयर पी इज द डाइपोल मोमेंट एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, and theta is the angle between the dipole moment P and the electric field E. So this is the complete discussions about the potential energy of the dipole placed in a uniform electric field. So my dear students, as per your request, I am making a video of this article and बहुत ही जल्दी ये वीडियो आप तक शेयर हो जाएगी। आप इसका फायदा उठाएं और उम्मीद है मेरी आगे भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अगेन सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, माय चैनल्स, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, ताकि बाकी सभी स्टूडेंट्स तक भी ये पहुंच पाए और वो भी इसका नियमित रूप से फायदा उठा सके। धन्यवाद।